Assalamualaikum everyone, this is Hussein and I'm an English teacher. Welcome to my channel Bingo English. Hope you guys must be doing well. So in this video, what you are going to be taught, I'm going to teach you about be able to, which is very interesting topic and content you can say, and structure you can say. And most of the students have asked me, sir, where we can use be able to, because in so many sentences we are using be able to. Like sometimes we use in modal verbs as well, sometimes we use in future sentences which different like be we use, and then we use is, are, was, were and been. So in this video I will clear your concept about be able to. So if you want to understand the whole lecture, so till the end you guys need to watch my video about be able to. And still, if you haven't subscribed my channel, so kindly subscribe my channel and press the bell icon for watching upcoming videos. It means that you guys will get the notification. So what are you thinking? Let's begin the channel. Let's begin the video as well. Guys, you can see in the screen now, over here I have written the title. The title is be able to, and you can see I have written the formation as well, which is indicating about be able to. Okay, jo formation I always prefer to write the formation. Basically, what is the main reason to write formation? Okay, formation का इसमें purpose क्या होता है लिखने का? Sometimes it happens that student forget to write is, are, and sometimes they forget to write like first form. They prefer to write ing form. कभी कभार वो ing form लिखते हैं. So these sort of mistakes students do. That's why I always prefer to write formation. And with the help of formation क्या होता है कि you don't prefer to do any sort of mistakes. कि आप prefer नहीं करते हो, यानी mistakes like simultaneously and continuously. You guys don't do mistakes in the sentences. So you guys can see the formation. Be able to की formation है. So be का already in the previous video in be supposed to I already explain about be कि be का मतलब क्या होता है. Basically यहाँ पे be का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि first form, second form and third form it has the forms. इसकी जो first form होती है वो is, are, जो कि present में ली जाती है. जैसे कि you guys can see that over here I have used is, are. तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ. सो वॉज वर हमने पास की बात करते हैं, और बीन जो होता है वो बेसिकली परफेक्ट की सिचुएशन में यूज किया जाता है. इफ यू आर आस्किंग मी सर व्हाट इज द सेंटेंस, हाउ टू मेक द सेंटेंस ऑफ बीन, कि हम बीन को यूज करते हुए एबल टू कैसे लगा सकते हैं. लाइक अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाऊं तो ये वही बनेगा जैसे कि मैं काबिल हो चुका हूं गाड़ी चलाने के. आई हैव बीन एबल टू ड्राइव अ कार. आई हैव बीन एबल टू ड्राइव अ कार. सो इन दिस वे आई हैव यूज्ड. लगाया मैंने वही फॉर्मेशन है, वही चीज लगाई है. जैसे कि यहाँ पे इज, आर है तो मैंने हैव बीन लगा दिया क्योंकि बीन जो वो थर्ड फॉर्म है. सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्मेशन. ठीक है, आई होप यू मस्ट बी गेटिंग द पॉइंट. सो ये फॉर्मेशन है. फॉर्मेशन इसकी अफर्मेटिव है. सब्जेक्ट इज, आर, एबल टू और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. अफर्मेटिव यू गाइस आर अवेयर, जो बिगनर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती. जो पॉजिटिव जो हो, जैसे कि मैं काबिल हूँ ये करने के, मैं गाड़ी चलाने के काबिल हूँ, मैं मैं यू कैन से मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूँ, मैं कंप्यूटर ऑपरेट करने के काबिल हूँ. सो ये पॉजिटिव होते हैं. जब आप किसी चीज के, यानी सपोज आप कहना चाह रहे हैं कि मैं काबिल नहीं हूँ स्विम करने के, सो यहाँ पे आप नेगेटिव लिख सकते हैं. आप कहना चाह रहे हैं कि मैं काबिल नहीं हूँ किसके, मैं काबिल नहीं हूँ गाड़ी चलाने के, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट एबल टू राइड अ कार इन दिस वे. सो नेगेटिव में आते हैं. सो और यहाँ पे इंट्रोगेटिव होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, जो आपसे सवालिया पूछे जाते हैं. सवालिया पूछे जाते हैं, जो आपसे सवालिया पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या आप ये काम करने की काबिल हैं, क्या आप गाड़ी चलाने के काबिल हैं. सो इन दिस वे ये सेंटेंस जो होते हैं, जो इज, आर, जिसमें सब्जेक्ट, एबल टू और फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, तो ये इसमें पूछा जाता है. और बी का आई होप यू मस्ट हैव गॉट द कॉन्सेप्ट. नाउ वी आर गोइंग टू मूव इनटू अनदर पेज. So over here you guys can see how to make sentences, कि इसके किस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं. पहले मैंने अफर्मेटिव को उठाया. अफर्मेटिव की यानी फॉर्मेशन लिखी हुई है. विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अफर्मेशन फॉर्मेशन आई हैव मेड द सेंटेंसेस. कि जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस यू गाइस कैन सी इन द स्क्रीन के लिखा हुआ है आई एम एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर, मतलब मैं काबिल हूं कंप्यूटर ऑपरेट करने के. सेकेंड सेंटेंस में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, शी इज एबल टू प्ले गेम्स, वो काबिल है गेम्स खेलने के. दे आर एबल टू राइड बाइक्स, वो काबिल हैं बाइक चलाने के. वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, हम काबिल हैं इंग्लिश बोलने के. यू आर एबल टू रिसाइट होली कुरान, तुम कुरान पाक की तिलावत करने के
काबिल हो. So in this way, with the help of using this formation, you guys can make the sentence of be able to, like in affirmative, जो कि आप affirmative positive, I have told you कि positive sentences की बात करता है. So it's very easy if you want to make any of the sentence. So you can make I am able to do this, I am able to go outside, I am able to walk slowly, I am able to run fast, or in this way, whatever you want to make the sentence, you guys can make. Now we are moving to another page. So over here you guys can see I have written negative as well and interrogative as well simultaneously in one page. You guys can see कि मैंने इन दोनों को साथ ही लिखा हुआ है because they are not very difficult. If you have got the concept of affirmative, so it's very easy. इसमें not लगाना होता है, वो सवालिया होते हैं, जैसे कि I am not able to operate computer. मैंने वही sentence को use करा है ताकि you guys will not face any sort of difficulties कि अगर मैं दूसरे sometime it happens that if I'm using different sentences, so students get confused कि सर, और तभी मैंने इसको सेम ही सेंटेंस में यूज करा है. लाइक शी इज नॉट एबल टू प्ले गेम्स, दे आर नॉट एबल टू राइड बाइक्स, and we are not able to speak English, and you are not able to recite Holy Quran. In this way I have used them. ये नेगेटिव में है और इंट्रोगेटिव में है कि am I able to operate computer, इसका क्या मतलब होता है, क्या मैं कंप्यूटर ऑपरेट करने के काबिल हूँ. Over here I have just blender one thing, and can you tell me what is a blender? Over here I have blender. You can consider, because as being an English teacher, I'm not supposed to make the mistake of question mark. Yes, over here I'm supposed to make the question mark. Right now I can do that. Right now. Question mark over here. I'm supposed to make the question mark. Like over here I have supposed to make the question mark. Fine, are you getting my point? यहाँ पे आपका ये question mark आएगा, ठीक है. और ये सारे sentences में you guys will put the question mark. It's my mistake, it's my blunder, but I needed to see that before editing. मुझे check करना चाहिए था, but I couldn't see. So यहाँ पे आपने question marks लगाना है, ठीक है. Remember that. और is she able to play games? क्या वो आपको ये पता होना चाहिए कि आई किसके साथ लगता है. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई एम के साथ, शी इज के साथ, दे आर के साथ, बी आर के साथ, यू आर के साथ. सो यू गाइज मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल ऑफ देम, ठीक है. ये आप लोगों को पता होने चाहिए. सो नाउ आई एम गोइंग टू मूव अहेड, और मैं इसको दोबारा पूरा कंप्लीट कर देता हूँ. आर दे एबल टू राइड बाइक्स, क्या वो बाइक चलाने की काबिल हैं. और इसी तरह से मैं और देख लेता हूँ. और आर वी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोलने के काबिल है. आर यू एबल टू रिसाइट हॉली कुरान, क्या हम कुरान पाक की तिलावत करने की काबिल है. सो देयर इज अ ब्लेंडर, यू गाइस मस्ट राइट क्वेश्चन मार्क इन द फॉर्मेशन. इवन दो आई हैव रिटन ओवर हियर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेशन में मैंने क्वेश्चन मार्क वो लिखा हुआ है. So you guys must write question mark. Fine guys, I'm going to move to the next page over here. Yes, usage in other sentences, मतलब इनका और कहाँ इस्तेमाल होता है, यानी और इसको हम कहाँ और किन सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि you guys can see in the first line, you should be able to speak English, मतलब तुम्हें ये इन मॉडल वर्ब्स we use as well, be able to, मगर जब भी हम इनको मॉडल वर्ब्स और जब will में यूज करेंगे, सो गाइज रिमेंबर, जब भी हम इनको विल में यूज करेंगे या मॉडल वर्ब में यूज करेंगे, सो ऑलवेज रिमेंबर कि हम यहाँ पर बी का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन. ठीक है, हम डायरेक्टली बी को पुट करते हैं क्योंकि मॉडल वर्ब्स में हम बी का इस्तेमाल करते हैं जब भी स्टेट के सेंटेंसेस बनाने होते हैं और मे बी एक्टिव पैसिव बनाने होते हैं. सो वी यूज बी. सो ओवर हियर यू गाइस कैन सी यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो मैं काबिल होना चाहिए इंग्लिश बोलने के. दिस इज द मीनिंग. वी मस्ट बी एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर, हमें काबिल होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेट करने के. दे कैन बी एबल टू स्विम, वो काबिल, दे कैन बी. बेसिकली यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, अगर आप ये बोलें कि दे कैन स्विम, सो यहाँ पे सेंस वही जाता है. ये सिमिलैरिटी है कि दे कैन स्विम, इसका मतलब वो है वो स्विम करने के काबिल है या स्विम करने के काबिल हो सकते हैं. सो बोथ मीनिंग्स आर सेम, बट सम टाइम यू माइट हैव हर्ड इन सम कॉन्वर्जेशन दे कैन बी एबल टू से, मतलब उर्दू में अगर हम कहना चाहें, इफ यू वांट टू से इन उर्दू, सो वो काबिल हो सकते हैं तैरने के. सो यू विल बी एबल टू ड्राइव कार, यू विल बी एबल टू ड्राइव कार, ही विल बी एबल टू कंप्लीट his homework. So वो अपना होमवर्क कंप्लीट करने के काबिल होगा. So in this way you guys make the sentence of be able to. I hope you must have got the concept of be able to. So guys, hope you guys have must got the concept of be able to, which was not that much difficult, but it was very easy content. And
but yeah, for the beginners it was, you can say that they were not aware about it and they did not know how to use it, but now you must have got how you can use in the sentences. And I would say that still, if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for watching upcoming videos. So inshallah guys, we'll meet in next video. Allah Hafiz.